Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic of chapter 8, that's name is allergy. Okay. Allergy is also known as allergic disease. Now we should know that what is the meaning of your allergy. Okay, you should know that if any foreign particles or allergens enter into the body from environment, okay, then it causes allergy, and during allergy the immune response of persons become weak against allergens. Okay, and these allergens occurs in environments. There are different kinds of allergens that are responsible to cause allergy, like dust particles, mites, animal danders, furs, okay, some chemicals, some food items also responsible to cause allergy. Okay, जैसे हम बात करेंगे बेटा कुछ जैसे फूड आइटम्स में जैसे फिश है, एग्स है, ठीक है, तो कुछ पर्सन्स को बेटा फिश एग, ठीक है, इनसे भी एलर्जी होती है. ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कुछ पर्सन्स की दैट शो एलर्जी व्हेन दे वियर कॉटन क्लोथ्स. ठीक है, जैसे कॉटन क्लोथ्स अगर वो पहन लेते हैं, ठीक है, तो कॉटन क्लोथ्स भी उनके लिए काम करते हैं एज एलर्जन. ठीक है, और क्या कोज करते हैं, एलर्जी. ठीक है, तो अलग अलग तरह के बेटा एलर्जेंस होते हैं. ठीक है, तो अब एक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ बेटा आपके सामने एलर्जी की. देखें, during allergy, abnormal immune response in the body when allergens or foreign particles enter into the body from environment. Okay, just I have told you allergens are responsible to cause allergy, and I have told you when allergens enter into the body, then the immune response becomes weak of affected persons. Okay, कि जैसे allergens body में enter हो जाते हैं बेटा, तो जो immune response है it becomes abnormal. Okay, there are different kinds of allergens. Allergens like pollen grains, second chemicals मतलब क्या आ रहा है, ड्रग्स. ओके, नंबर थर्ड sunlight, number 4 dust particles, number 5 feathers, number 6 fur, number 7 animal danders, etc. Okay, these are examples of allergens. अब आपको जानना है बेटा what will happen when allergens enter into the body. ठीक है, ये कॉज तो करते हैं एलर्जी, लेकिन हमें जानना है कि एलर्जी किस तरह कॉज होती है. ठीक है, सिर्फ यही जानने से काम नहीं चलेगा कि भाई एलर्जेंस एंटर इनटू द बॉडी एंड दे कॉज एलर्जी. ठीक है, अब ये भी जाने कि कौन कौन सी रिएक्शन होंगी व्हेन एलर्जेंस एंटर इनटू द बॉडी. ओके, अब क्या है बेटा कि सपोज इट इज एलर्जन,
allergens, okay, and it enters into the body. You know very well, in our body different kinds of antibodies occurs. Okay, I have told you in previous classes there are 5 types of natural antibodies: IgA, IgG, IgD, IgM and IgE. Okay, out of these antibodies, IgE is responsible for allergic reaction. Okay, होगा क्या कि जब एलर्जेंस बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, ओके, देन IgE एंटीबॉडी बाइंड्स विद मास्ट सेल्स. 2 सेल्स हो रहे हैं बेटा जो एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल सेल्स. ठीक है, तो क्या होगा कि जो IgE एंटीबॉडीज हैं दे बाइंड्स विद मास्ट सेल्स. ठीक है, अब आप समझें फिर क्या होगा कि जैसे ही एलर्जेंस एंटर हो जाते हैं तब क्या होगा बेटा कि जो ये मास्ट सेल्स हैं जिनके साथ क्या बाइंड हुआ है, IgE एंटीबॉडी. ठीक है, अब एलर्जेंस बाइंड हो जाएंगे साथ किसके, IgE एंटीबॉडी के. ये आप समझे. एक बार दोबारा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ. व्हेन एलर्जेंस एंटर इनटू द बॉडी, ओके, देन IgE एंटीबॉडी बाइंड्स on the surface of mast cells or basophil cells. Okay, now allergens bind with IgE antibody. ठीक है, इतना कुछ समझ में आया. अब चलेगा बेटा एक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड डीग्रेन्युलेशन. क्या कहलाएगा, डीग्रेन्युलेशन. ड्यूरिंग डीग्रेन्युलेशन some chemical substances released out from mast cells, okay, and the name of these chemical substances are first histamine, second serotonin, okay, prostaglandins एक्सेट्रा. ओके, अब आपकी बेटा एनसीईआरटी में ये 2 दिए हुए हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, तो ज़्यादा फोकस आप इनके ऊपर करें. ठीक है, ठीक है. जैसे ही एलर्जेंस बाइंड हुए साथ IgE के, तब क्या होगा बेटा, मास्ट सेल्स रिलीज सम केमिकल सब्सटेंसेज लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. ओके, और जब हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज होगा बेटा फ्रॉम मास्ट सेल्स. ठीक है, देन पर्सन शो सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. There are different kinds of symptoms of allergy, okay, like sneezing, itching, redness on skin, okay, फिर हम कह सकते हैं कि वॉमिटिंग हो गया. ठीक है, वॉमिटिंग के अलावा जैसे watery secretion of eyes, nasal secretion. तो there are some symptoms of allergy. ठीक है, लेकिन अभी समझे बेटा कि जो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि IgE एंटीबॉडी, ठीक है, IgE एंटीबॉडी का बेटा कुछ पॉजिटिव फंक्शंस भी होते हैं. ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि भाई IgE इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन. ठीक है, ऐसा नहीं है. जो IgE होती है बेटा, ठीक है, इसका पॉजिटिव फंक्शन क्या है कि IgE एक्टिवेट्स इओसिनोफिल सेल्स. ठीक है, जो इओसिनोफिल सेल्स होती हैं उनके सरफेस पे ही बाइंड हो जाती है, ओके, टू किल और डेस्ट्रॉय हेलमिंथीज. आपको पता है बेटा हेलमिंथीज, ठीक है, जैसे फ्लैटवॉर्म्स हो गए हैं आपके. हेलमिंथीज यानी कि प्लेटिहेलमिंथीज, और जो है एस्केलमिंथीज. एस्केलमिंथीज से कौन बिलोंग कर रहा है, एस्केराइसिस. ठीक है, एस्केराइसिस हो गए हैं, और प्लेटिहेलमिंथीज से फ्लैटवॉर्म्स वगैरह हो गए. ठीक है, लिवर फ्लूक हो गया, ये एग्जाम्पल है फ्लैटवॉर्म्स का. ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि जब IgE बाइंड हो जाती है साथ किसके, इओसिनोफिल सेल्स के. ठीक है, देन इट किल और डेस्ट्रॉय हेलमिंथीज. ठीक है, तो इसका ये पॉजिटिव फंक्शन भी है. लेकिन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है इसका बेटा कि जैसे एलर्जेंस अंदर हो जाता है एंटर बॉडी के, ठीक है, तो ये बाइंड होती है साथ किसके, बेसोफिल्स या मास्ट सेल्स के साथ. ठीक है, फिर क्या बताया आपको मैंने कि मास्ट सेल्स रिलीज करती हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेज. ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल सब्सटेंसेज, ओके,
पर्सन्स हु सफर फ्रॉम एलर्जी इट शो सिम्टम्स, ठीक है। अब सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, जैसे बताता हूँ अभी आपको मैं। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, फर्स्ट स्नीजिंग, सेकंड वॉमिटिंग, नंबर थर्ड itching, नंबर फोर्थ watery secretion from eyes, number fifth nasal secretion, number six dilation of blood vessels, ओके। तो एक वो सिम्टम्स से बेटा एलर्जी के, ठीक है, कौन कौन से बताया अभी आपको मैंने, ठीक है। एक तो स्नीजिंग हो गया, दूसरा वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, और वॉमिटिंग के बाद है ईचिंग है, वाटर सिक्रेशन फ्रॉम आइज, ठीक है, और नेजल सिक्रेशन हो गया, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, कुछ जैसे रेडनेस ऑन स्किन, ठीक है। तो ये भी सिम्टम्स है किसके, एलर्जी के, ठीक है। मेन अब हमें इसमें पढ़ना है बेटा डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स डायलेट किस तरह होती हैं। मैंने अभी बेटा जस्ट आपको बताया था कि कुछ जो केमिकल्स होते हैं, जो ड्रग्स में जो कुछ केमिकल्स होते हैं, दे ऑल्सो एक्ट एज ए एलर्जेंस, ओके, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल टू कॉज एलर्जी। जैसे एग्जांपल दूंगा आपको मैं पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन हो गया है, ठीक है, और एस्पिरिन हो गया है, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कॉज कर सकते हैं एलर्जी, ठीक है, सभी में नहीं लेकिन कुछ पर्सन्स की बॉडी में, ठीक है, जिनकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है अगेंस्ट दीज केमिकल्स, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही हम पेनिसिलिन इंजेक्ट करवा रहे हैं इनटू पेशेंट बॉडी, ठीक है, और सीधा इंजेक्ट किस में करवा दिया बता अपन ने, वेन्स के अंदर, ठीक है, इंट्रावेनियस, ठीक है, इंजेक्शन के सीधा हमने पेनिसिलिन किस में डाल दिया, वेन्स के अंदर। अब क्या होगा बता, वेन्स में जैसे आपने इंसर्ट करवा दिया तो जो ये जो केमिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं पेनिसिलिन के, ठीक है, ये पूरी बॉडी में क्या हो जाएंगे बेटा, स्प्रेड थ्रू आउट दी बॉडी, पूरी बॉडी में फैल जाएंगे ये। फिर बताया भी आपको मैंने कि इन सम पर्सन्स बॉडी दीज पेनिसिलिन केमिकल मॉलिक्यूल्स एक्ट्स एज ए एलर्जन, तो यानी कि एलर्जन फैल गया पूरी बॉडी के अंदर। फिर क्या होता है बेटा कि जब एलर्जन फैल गया है तो मैंने बताया था आपको कि कौन सी एंटीबॉडीज स्टिमुलेट हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, आईजीई एंटीबॉडी। और जब आईजीई एक्टिवेट्स हो गई है तो किसके सरफेस से आगे बाइंड होंगी, वो मास्ट सेल्स में, ठीक है। तो यानी कि मास्ट सेल्स भी एक्टिवेट हो चुकी हैं कि आईजीई जो है एक्टिवेट हो गई हैं, और साथ में मास्ट सेल्स भी क्या हो गई बेटा, एक्टिवेट हो गई हैं, ठीक है, पूरी बॉडी की। और उनके ऊपर जो ये एंटीबॉडीज हैं, कौन सी, आईजीई एंटीबॉडी, ये जाकर बाइंड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एलर्जेंस बाइंड हो रहे हैं। एलर्जेंस कौन सा, पेनिसिलिन एलर्जेंस, ठीक है, बाइंड हो गया पूरी, है ना। अब क्या होगा कि जब मास्ट सेल्स के साथ आईजीई एंटीबॉडीज बाइंड हो गई है, साथ क्या बाइंड हो गया उसके, एलर्जेंस, तो अब मास्ट सेल्स रिलीज करेंगी केमिकल्स, और केमिकल्स कौन से, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। तो हम फंक्शन देख रहे हैं हिस्टामिन का, ठीक है, क्या होगा
व्हेन हिस्टामिन रिलीज्ड आउट फ्रॉम मास्ट सेल्स। ठीक है, होगा क्या बेटा कि जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स बिकम डायलेटेड। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये डायलेटेड हो जाएंगी। इसको हम बोलेंगे वैसो डायलेशन। एंड ड्यूरिंग वैसो डायलेशन, ठीक है, दो काम कर रहा है। एक तो हिस्टामिन क्या कर रहा है बेटा, वैसो डायलेशन कर रहा है, ठीक है, और दूसरा इट ऑल्सो इंक्रीजेज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। और दूसरा क्या किसने इंक्रीज कर दिया, परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस सम फ्लूइड्स कम्स आउट फ्रॉम ब्लड्स। ठीक है, और जो कुछ फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड comes out from ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो दो चीज आप ध्यान रखें कि मास्ट सेल्स ने जैसा हिस्टामिन को बाहर निकाला, ठीक है, तो हिस्टामिन क्या कर रहा है बेटा, एक तो हिस्टामिन वैसोडायलेशन कर रहा है, ठीक है, वैसोडायलेशन कर रहा है, और दूसरा कि इट ऑल्सो इंक्रीजेज परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस सम बॉडी फ्लूइड्स, सम फ्लूइड्स that occurs in a blood, ठीक है, some fluids comes out from blood vessels। ठीक है, अब क्या होगा, during vasodilation BP is decreased। BP क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड हो जाता है। ठीक है, और जब BP डिक्रीज्ड हो गया, ठीक है, तो लास्ट में बेटा पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर ज़्यादा BP डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो पर्सन की क्या हो सकती है, उसमें डेथ भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो ये रोल था हिस्टामिन का, ठीक है, जो रिलीज किसने किया, मास्ट सेल्स ने। ठीक है, और लेकिन हुआ किसकी प्रेजेंस में था, ये पेनिसिलिन ड्रग्स की प्रेजेंस में हुआ ये। ठीक है, तो ये कुछ एक सिम्टम्स था, बताया था ना आपको मैंने कि वैसोडायलेशन इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, कि वैसोडायलेशन इस तरह होता है, ठीक है, कि जिस पर्सन को पेनिसिलिन ड्रग से एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी है, तो उसकी बॉडी के अंदर बेटा इस तरह का मतलब जो है इस तरह के फंक्शंस होंगे उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, फिर बात चल रही बेटा कि सबसे पहले, ठीक है, 1906 के अंदर एक साइंटिस्ट थे हु रिप्रेजेंटेड एलर्जी टर्म। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस साइंटिस्ट रिप्रेजेंटेड एलर्जी टर्म एंड नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट वाज वॉन पिरकेटे। ठीक है, वॉन पिरके साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने एलर्जी टर्म को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, अब आपको जानना है बेटा कि देयर आर सम ड्रग्स, ठीक है, देयर आर सम ड्रग्स दैट आर आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट रिएक्शन ऑफ टू प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शंस। ठीक है, कि जो ये सिक्रेशन हो रहा है मास्ट सेल से हिस्टामिन का, सेरोटोनिन का, ठीक है, तो इन इस सिक्रेशन को थोड़ा कम करना, इसको रोकना। ठीक है, तो वो ड्रग्स हैं जो यूज में आते हैं। ठीक है, और उन ड्रग्स का नेम है ड्रग्स फॉर एलर्जी। ठीक है, एलर्जी का बेटा कोई परमानेंट क्यूरेटिव मेथड नहीं है कि भाई इन ड्रग्स को दिया और पूरा मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बस इतना आप ध्यान रखें कि जो ये ड्रग्स होते हैं ना, दे प्रिवेंट रिएक्शन, दे प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, सिम्टम्स को रोकने का काम आते हैं, एक तरह से ये है ना। तो पहला तो है बेटा एड्रेनालिन। ओके, सेकंड ड्रग इज एंटी हिस्टामिन, नंबर थर्ड स्टेरॉइड हार्मोन्स एक्सेट्रा। ओके, दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट रिएक्शन। जब जैसे इसका देख लो आप, एंटी हिस्टामिन का बताया अभी आपको मैंने कि जैसे जो कोई मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, मास्ट सेल्स के साथ IgE बाइंड है, साथ एलर्जेंस बाइंड हो गया। अब मास्ट सेल्स क्या निकाल रही है, हिस्टामिन। ठीक है, अब हिस्टामिन जैसे अभी ये हिस्टामिन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अभी कहाँ अटैक कर रहे हैं, ये अटैक कर रहे हैं ब्लड वेसल्स पे। कहाँ अटैक कर रहे हैं बेटा,
ब्लड वेसल्स पे। बताया ना कि जैसे हिस्टामिन की वजह से वैसोडाइलेशन होगा, ठीक है, और जो परमिलिटी होती है ब्लड वेसल्स की वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे जो फ्लूइड्स हैं दे कम्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो अब होगा क्या कि अगर हमने किसी को एंटी हिस्टामिन दिया है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एंटी हिस्टामिन बाइंड्स विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड दे प्रिवेंट द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामिन। ये किसकी जो किसकी एक्टिविटी को रोक देते हैं बेटा, हिस्टामिन की एक्टिविटीज को। कौन, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, ये एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हो गए, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, ठीक है। तो ये समझिए, ये जो है मतलब फंक्शंस इन ड्रग्स के। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे बेटा ऑटो इम्यूनिटी। ओके।